السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا ولقبہ مدار العالمین۔ علم عباس کا لے کر جہاں کی خاک چھانیں گے، غم شبیر میں ہر ایک ستم کو خیر جانیں گے۔ فتاوے لاکھ ہو صادر جہل کے ہم پہ عامر، فتاوے لاکھ ہو صادر جہل کے ہم پہ عامر، کریں گے تعزیہ داری نہ ان کی ایک مانیں گے، کریں گے تعزیہ داری نہ ان کی ایک مانیں گے۔ محترم سامعین کرام، جواز تعزیہ داری کے اس ٹاپک پر آپ نے حصے اول کو، پہلے پارٹ کو بخوبی سماعت فرمایا کہ جس میں شعائر اللہ، آیت اللہ، یعنی کہ وہ چیزیں جن سے اللہ کی یا اللہ والوں کی یاد تازہ ہو جائے انہیں اللہ کی نشانیاں کہا جاتا ہے، آپ نے بخوبی سماعت فرمایا۔ اگر نہ سماعت کیا ہو تو آپ میری چینل پر جا کر کے اسے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پارٹ کے اندر، پارٹ 2 کے اندر جو اہم حصہ ہے تعزیہ بنانا جائز اور مستحسن ہے، اس پر گفتگو کریں گے، آپ اچھے سے سماعت فرمائیے۔ تعزیہ بنانا جائز اور مستحسن ہے، اچھا کام ہے، اس لیے 10 محرم و حرام کے موقع سے، یادگار امام حسین علیہ السلام کے موقع سے تعلق سے جو تعزیہ بنایا جاتا ہے اور امام پاک کی یاد منائی جاتی ہے، نہ یہ صرف جائز اور مباح ہے بلکہ محبوب اہل سنت، مندوب اصحاب عقیدت اور مرغوب شہداء یعنی شاہ شہادت ہے۔ تعزیے سے حسینیت کی تشہیر ہوتی ہے اور اہل سنت واہل بدعت میں تعزیہ داری سے امتیاز ہوتا ہے، اس لیے بلا شک و شبہ یہ امر مستحسن ہے۔ حضرت امام ابن جریر لفظ شاعر کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ یہ شعیرۃ بروزن فعیلۃ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے۔ وشعائر التی جعلها امارۃ بین الحق والباطل، یعنی جن چیزوں سے حق اور باطل کی شناخت ہو سکے، پہچان ہو سکے، انہیں شعائر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانیاں کہتے ہیں۔ تعزیہ حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اس کلیے کے پیش نظر یہ ثابت اور متعین ہے کہ تعزیہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں، ہمارے دیار میں اہل سنت کا شعار بن چکا ہے اور تعزیہ دار صرف اہل سنت میں پائے جاتے ہیں۔ اہل بدعت و شناعت اسے ناجائز سمجھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تعزیہ سے حسینیت کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ یزید پلید کو رضی اللہ لکھنے والوں اور سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام کو امام ماننے والوں کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے، فرق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس کے بنانے اور نکالنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ تعزیہ یادگار امام حسین ہے۔ تعزیہ بنانے والے تعزیہ بنانے کے وقت صرف یہ نیت کرتے ہیں کہ اس یادگار امام عالی مقام امام حسین کو حسین سے حسین تر بنائے، خوبصورت سے خوبصورت بنائے اور اپنے ہنر کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض تعزیہ دار شبیہ روضہ امام عالی مقام بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ ہو بہو نقشہ اتار دیتے ہیں، اور بعض اس کام میں کچے ہوتے ہیں، ہو بہو مثال قائم نہیں کر پاتے، اور بعض ایسے بھی ہے جو صرف امام پاک کی محبت میں ان کی یادگار منانے کے لیے ایک تصوراتی محل کا نقشہ بنا کر اسی کو یادگار امام تصور کر لیتے ہیں۔ بہر صورت نیت محمود ہے، نیت اچھی ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح حجر اسود کے بوسہ لینے میں لکڑی یا اپنا ہاتھ چوم لینے سے حجر اسود کا بوسہ حقیقت میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن شرع مطہر نے اسے بوسے کے متبادل مان لیا ہے۔ منبر رسول کا احترام، اسی طرح ہمارے دیار و امسار میں اہل سنت کے مدارس و جلسہ گاہوں میں جو اسٹیج بنایا جاتا ہے، عموماً ہندوؤں، غیر مسلموں اور بے احتیاط لوگوں کے ٹینٹ ہاؤس سے سارا سامان لایا جاتا ہے۔ تخت ہو، دریا ہو، غلیچے ہو، چاندنی ہو اور لاؤڈ سپیکر، باجا مشین وغیرہ سب دوسروں کے یہاں سے آتا ہے۔ خطبہ حضرات فرماتے ہیں، منبر رسول سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، لیجئے صاحب، تخت، دریا، گلیچے، چاندنی، حتیٰ کہ کرسی اور لاؤڈ سپیکر
सब कुछ किसी राम सिंह या शंकर दयाल वगैरह के यहाँ से लाया गया है, लेकिन सुन्नी उलमा फुजला खुतबा नुकबा फरमा रहे हैं कि ये मिंबर रसूल है। न इस मिंबर या इस स्टेज पर कभी हुजूर रसूल करीम ने तशरीफ रखा, न ये उनके घर के किसी चीजों से बना, लेकिन फिर भी मिंबर रसूल कहना, फिर भी ये मिंबर रसूल है। टेढ़ा हो, ऊंचा हो, छोटा हो, फिर भी मिंबर रसूल। न कोई आलिम मना करता है कि उसे मिंबर रसूल कहना हराम है, और न किसी मुफ्ती साहब को इस पर एतराज है। अपना काम हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, तो फिर भला छोटे बड़े ऊंचे नीचे रंग बरंग के यादगार इमाम हुसैन यानी ताजिए पर क्यों कर किसी को एतराज है। किसी भी जायज नक्शे में ताजिया बनाना बिल्कुल जायज है। किसी पाक कपड़े के गिलाफ में कुरान पाक को रखा जाए, किसी पाक लकड़ी से रहले कुरान पाक बनाया जाए और किसी शक्ल या किसी नक्शे में बनाया जाए, कुरान मजीद उस पर रखा जाए, इसलिए वो मोहतरम है, काबिल इज्जत है, उसे चुमा भी जाएगा और सीने से लगाया भी जाएगा। ये सब महमूद मुस्तहसन है। इसी तरह ताजिया यादगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। जवाज के लिए इतना ही काफी है कि शरअ शरीफ का एक कायदा कुल्लिया है, अल असलो फिल अशियाहिल इबाहा। ताजिए में जो लकड़ी, जो खपची, जो तांत, जो धागा और जो कागज इस्तेमाल होता है वो सब इनफिरादी तौर से जायज और मुबाह और पाको साफ है। अब जबकि वो यादगार हुसैनी यानी कि ताजिए में इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा लगा दिए जाए, तो जायज क्यों कर, तो नाजायज क्यों कर हो जाएंगे। बिला शुबा वो अब भी जायज और मुस्तहसन है। ताजिया गुमाना जायज है। बाद शहरों में खाना काबा और गुंबद खजरा का नक्शा बनाकर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के मौका पर शहरों में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के आगे आगे घुमाया जाता है। बाद शहरों में मक्का मुअज़्ज़मा के खाने काबा और गुंबद खजरा, रोज़े मुक़द्दसा, सैयद आलम का नक्शा शहरों के सदर दरवाजों पर बनाया जाता है। आमतुल मुस्लिमीन उसकी ज़ियारत करते हैं। इससे शौकत इस्लामी का मुजाहिरा होता है। अपनों और बेगानों के दिलों में उसकी वक़्अत बिठाई जाती है। और अब तो बाज मौलवियों और मुफ्तियों के यौम के मौके पर उनकी कब्रों और गुंबदों का फोटो और नक्शा भी खूब घुमाया और लगाया जा रहा है। बाज उलमा के मज़ारों के गुंबद बतौर पहचान मस्जिदों और मीनारों की जगह फिट किए जा रहे हैं, ताकि वो मस्जिद या वो जगह उस जमात की याद दिलाए और उसकी तरफ इशारा करे। ताजिया घुमाने से अहले बातिल के दिल पर रोब तारी होता है। इमाम दुनिया वल आखिरा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार ताजिए मुतबर्रिका को जुलूस हुसैनी के साथ गश्त कराने में, घुमाने में कौन सा अम्र शरई माने हैं? शरीयत में कौन सा अम्र मना करता है? हाँ, अहले बिदअत और गुमराहों के दिल इस यादगार हुसैनी को देखकर जरूर जल भुन जाते हैं। ताजिए को जुलूस हुसैनी के साथ गश्त कराने में, घुमाने में जहां अगयार पर इस्लामी रोबो दबदबा कायम हो जाता है, वही मुसलमानों के मर्दो जन, पीरो तिफलो पीर सबके अंदर जज्बे हुसैनी और हौसले कुर्बानी वफा कायम हो जाता है। और ऐसा जज्बा कायम करना ऐने कुरान और सुन्नत का मंशा है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। 10वीं मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के रोज़े मुक़द्दसा की मिसाल या किसी और जायज शक्ल में यादगार इमाम पाक की कोई अलामत निशानी बनाना और मिसाले गुंबद खजरा की तरह गलियों कूचों में घुमाना और जुलूस हुसैनी के साथ उसकी तशहीर और प्रचार करना बिला शक व शुबा जायज और मुस्तहसन है। और अहले सुन्नत की एक देरीना रिवायत और कदीम मामूल है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक हुक्म फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तफसीर खज़ाइनुल इरफान में
इसके तहत है हजरत सदरुल अफाजिल मुफस्सिर मुरादाबादी रकम फरमाते हैं, कामूस में है कि अय्यामुल्लाह से अल्लाह की नेमतें मुराद है। हजरत इब्ने अब्बास और उबई इब्ने काब और मुजाहिदा और कतादा ने भी अय्याम की तफसीर अल्लाह की नेमतें फरमाई है। मकातिल का कौल है कि अय्यामुल्लाह से वो बड़े बड़े मवाक़े और वक़ाए मुराद है जो अल्लाह के अमर से वाक़े हुए। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अय्यामुल्लाह से वो दिन मुराद है जिनमें अल्लाह ने अपने बंदों पर इनाम फरमाया, जैसे कि बनी इसराइल के लिए मन्नो सलवा उतरने का दिन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ता बनाने का दिन। इन अय्याम में सबसे बड़ी नेमत के दिन सैयदे आलम की विलादत और मेराज के दिन है। इनकी याद कायम करना भी इस आयत के हुक्म के मुताबिक है। बाज लोग मिलाद शरीफ, मेराज शरीफ और जिक्र शहादत के अय्याम की तखसीस में कलाम करते हैं। इस आयत से नसीहत पजीर होना चाहिए। इस तफसीर से यह मुतय्यन हो गया कि अय्यामुल्लाह से नेमतों के दिन, वाक़ियात अज़ीमा के दिन मुराद है और उनकी तज़कीर और तशहीर का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है और उसी में 10वीं मुहर्रमुल हराम भी शामिल है। बस अगर ताज़िया जुलूस हुसैनी के जरिया गलियों कूचों वाक़िए करबला की याद दिलाई जा रही है और इसे यादगार हुसैनी की तशरीह की जा रही है, तो ये ऐने हुक्म इलाही के मुताबिक है, उसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। नफ्से ताज़िया में शरअन कोई कबाहत नहीं है, इसलिए कि अशिया में असल अबाहत है। जिस तरह मुरवजा आरास में उर्स के मौका पर ममनुआत शरिया के खल्त मल्त के बावजूद नफ्से उर्स के जवाज में शरअन कोई कलाम नहीं है, इसी तरह नफ्से ताज़िया के जवाज में शरअन कोई कलाम नहीं है, बल्कि ये औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन के नजदीक पसंदीदा और महबूब है। हिंदुस्तान और बर्रे सगीर की जितनी असली कदीमी खानकाएं है, ताज़ियादारी का रवाज और मामूल सारी खानकाओं में है, इल्ला माशाअल्लाह। जितनी अहले सुन्नत की पुरानी और कदीम खानकाएं है, तमाम खानकाओं के अंदर आप मुहर्रमुल हराम के मौका पर जाएंगे तो आपको खूब ताज़ियादारी का रवाज मिलेगा। जो असली खानकाएं है हम उनकी बात करते हैं, जो फर्ई है जिनकी खानकाओं से कोई वाबस्तगी नहीं है या उनका कोई बात नहीं हो रही है। तो दोस्तान मोहतरम, अपने इस पार्ट 2 को, हिस्से 2 को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में मजीद गुफ्तगू करेंगे और मजीद पर बात करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।